Hi everyone, this is Pooja from JMD classes. Welcome. Today I am going to start chapter 6, The Monkey and the Crocodile of class 6th supplementary book. It's very interesting story guys. So let's begin. A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. एक monkey नदी के किनारे एक fruit tree पे रहता था. He made friends with a crocodile. उसने crocodile से मगरमच्छ से दोस्ती की. Gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. और उसे delicious मतलब tasty fruits दिए खाने के लिए और कुछ उसकी wife के लिए भेजे. They met regularly and talked. वो रोज मिलते और बातें करते. The monkey in the tree and the crocodile on the ground. Monkey tree पे होता था और crocodile ground पे होता था. Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक बार एक नदी के किनारे एक मंकी ने फ्रूट ट्री पे अपना घर बनाया जो कि फ्रूट से भरा हुआ था, लदा हुआ था. laden with fruit मतलब फ्रूट से लदा हुआ था. He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. वो वहाँ बहुत खुशी से रहता था, अपनी मन मर्जी से फ्रूट्स खाता था. To his heart's content means to his satisfaction, अपनी मर्जी से, अपने satisfaction के लिए. The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. Monkey बहुत खुश था but अकेला था और उसे companion चाहिए था. Companion means friend, जिससे वो बात कर सके और जिसके साथ वो अपने fruits share कर सके. But there was no one around, not even another monkey. पर वहाँ कोई नहीं था. Not even another monkey, कोई दूसरा monkey भी नहीं. Till one day a crocodile appeared on the river side. तब एक दिन उस नदी के किनारे एक crocodile दिखा. Hello there, said the monkey. Do you live in this river? तो वो crocodile से क्या कहता है monkey? Hello, क्या तुम इस river में रहते हो? Would you like to eat some fruits? क्या तुम कुछ fruits खाना चाहोगे? Good morning, replied the crocodile politely. तो crocodile क्या reply देता है? Good morning. Politely मतलब विनम्रता से, प्यार से वो आंसर देता है. I did come here in search of food for myself and my wife. मैं यहाँ फूड की तलाश में आया हूँ, खुद के लिए और अपनी वाइफ के लिए. Nice of you to offer me fruits. बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे फ्रूट्स ऑफर किए. The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. मंकी ने पास वाली एक टहनी से कुछ फ्रूट्स तोड़े. plucked means तोड़े और उन्हें नीचे फेंक दिया. The crocodile found them delicious. क्रोकोडाइल को ये डिलीशियस लगे, टेस्टी लगे. Thanks, he said. उसने कहा थैंक यू. May I have some on my next visit? क्या अगली बार आने पर मुझे कुछ फ्रूट्स मिलेंगे? Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. मंकी ने कहा Certainly मतलब surely, जितने तुम चाहो और कुछ तुम्हारी वाइफ के लिए भी. Do come again, दोबारा जरूर आना. I am rather lonely here. मैं यहाँ अकेला रहता हूँ. The crocodile visited the monkey regularly and ate the fruits which his host threw down. Crocodile monkey से रोज मिलने लगा और वो फ्रूट्स खाता जो उसका होस्ट नीचे फेंकता. होस्ट यहाँ पे मंकी के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि उस फ्रूट ट्री पे मंकी रहता था. ओके. He took some home for his wife. और कुछ वो अपनी वाइफ के लिए घर ले जाता. The monkey and the crocodile were now the best of friends. Monkey और crocodile अब best friends थे. They talked and were never tired of talking. वो बातें करते और बातें करते करते कभी नहीं थकते. They talked about birds and animals. वो क्या क्या बातें करते? वो birds के बारे में बात करते, animals के बारे में, about the villages nearby, आस पास के villages, गाँव के बारे में, and difficulties villagers faced in raising good crops for lack of rain. और बारिश की कमी से जो विलेजर्स प्रॉब्लम फेस कर रहे थे गुड क्रॉप्स ग्रो करने में, उनके बारे में भी बात करते कि बारिश नहीं हो रही है और उसकी कमी से अच्छी क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर पा रहे हैं. द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज एनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट. क्रोकोडाइल की वाइफ गुस्सा हो गई थी क्योंकि उसका हस्बैंड घर देरी से आया. शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी. उसे मंकी के साथ उसकी फ्रेंडशिप पसंद नहीं थी. द क्रोकोडाइल couldn't altogether ignore his wife's wishes. क्रोकोडाइल अपनी वाइफ की विशेस को इग्नोर नहीं कर पाया. One day, the crocodile stayed with the monkey longer than usual.
एक दिन क्रोकोडाइल मंकी के साथ पहले से ज़्यादा टाइम रुका. His wife was annoyed, waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. उसकी वाइफ वेट कर करके और जो अभी अभी बच्चे हुए थे उनको संभाल के बहुत गुस्सा हो गई थी. annoyed मतलब एंग्री हो गई थी. She said, who is this friend of yours you are so fond of? उसने कहा कि तुम्हारा ऐसा कौन सा फ्रेंड है जिसे तुम इतना लाइक करते हो. Oh, he is a very nice monkey, he replied. Oh, वो बहुत प्यारा मंकी है, क्रोकोडाइल ने रिप्लाई किया. He lives on a fruit tree, he sends fruits for you every day. वो एक फ्रूट ट्री पे रहता है, वो तुम्हारे लिए रोज फ्रूट्स भेजता है. You don't expect me to climb trees, do you? क्या तुम्हें लगता है कि मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ और वहाँ से तुम्हारे लिए फ्रूट्स तोड़ के लाता हूँ? A nice monkey, I'm sure, replied the wife with obvious sarcasm. Obvious sarcasm मतलब मजाक उड़ाते हुए. तो क्या कहती है उसकी वाइफ? हाँ हाँ, surely he is a nice monkey. If you ask me, this monkey should be my food. अगर तुम मुझसे पूछो तो ये मेरा फूड बन सकता है. I want to eat his heart so much. मैं उसका हर्ट खाना चाहती हूँ. What a foolish thing to say, shouted the crocodile. क्रोकोडाइल चिल्लाता है कि ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात करती हो. I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. मैं एक फ्रेंड को नहीं मार सकता, हालांकि टेस्ट चेंज करने के लिए अगर मुझे मंकी को खाना पड़े तो मैं खा सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड को नहीं मार सकता. You bring him here, ordered the wife. I want to see him. तुम उसे यहाँ लाओ, वाइफ ने ऑर्डर दिया, मैं उसे देखना चाहूँगी. So you can eat him, never, declared the husband. तो हस्बैंड यानी कि क्रोकोडाइल क्या कहते हैं, ताकि तुम उसे खा सको, never. His wife was furious and she dived in to hide herself in the bottom of the river, leaving the little ones to pester their fathers. उसकी वाइफ बहुत गुस्सा हुई और अपने बच्चों को छोड़ के वो खुद को रिवर के बॉटम साइड पे छुपा लेती है ताकि उसके बच्चे अपने फादर को परेशान कर सकें. पेस्टर मीन्स परेशान. द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डिलेमा. क्रोकोडाइल अब बहुत दुविधा में था. डिलेमा मतलब दुविधा. ही लव्ड हिज वाइफ एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फ्रेंड टू. वो अपनी वाइफ से भी प्यार करता था और अपने फ्रेंड को भी लाइक करता था. फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ. शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल. फाइनली वो डिसाइड करता है कि अपनी वाइफ की साइड लेगा. आखिरकार वो उसकी लाइफ पार्टनर थी. आई नो इट्स अ सिन टू बीट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नॉट चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने खुद से कहा कि मुझे पता है किसी फ्रेंड को धोखा देना पाप है, पर मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है. बीट्रे मीन्स धोखा और सिन मीन्स पाप. आई विल इन्वाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट. मैं मंकी को इन्वाइट करूँगा घर पे और होप फॉर द बेस्ट, अच्छे की उम्मीद करूँगा. माई वाइफ wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. जब क्रोकोडाइल मंकी से दोबारा मिलता है तो क्या कहता है कि डियर फ्रेंड, मेरी वाइफ तुम्हें भोजन के लिए बुला रही है. मील मीन्स भोजन. यू मस्ट कम होम विद मी टुडे. आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना पड़ेगा. विथ प्लेजर सेड द मंकी. मंकी खुश हो जाता है इस पे. आई एम नो स्विमर. मुझे तैरना नहीं आता, बट कैन राइड ऑन योर बैक. पर मैं तुम्हारी बैक पे सवारी कर सकता हूँ. एंड दे सेट आउट. और वो चल पड़े. इन द मिडल ऑफ द रिवर वेयर द करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट द क्रोकोडाइल कुड नो लॉन्गर हाइड हिज इंटेंशन. रिवर के मिडल में जहाँ पे करंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, क्रोकोडाइल अपनी फीलिंग्स को, अपने इंटेंशंस को छुपा नहीं पाया. सॉरी माई फ्रेंड, ही सेड हेजिटेटिंगली. हेजिटेटिंगली मतलब संकोच करते हुए, शर्माते हुए. वो कहता है सॉरी माई फ्रेंड, बट आई हैव टू गो अंडर वाटर नाउ. पर मुझे अब वाटर के नीचे जाना पड़ेगा. आई हैव ब्रॉट यू हेयर टू किल यू. मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ. माई वाइफ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईटिंग योर हर्ट. मेरी वाइफ तुम्हारा हर्ट खाए बिना जिंदा नहीं रह सकती. गुड बाय. द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक. ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर. मंकी तड़प उठा. उसे डर लग रहा था. उसे पता था कि उसकी लाइफ खतरे में थी. ही केप्ट हिज कूल एंड परसुएडेड द क्रोकोडाइल ऑन ए प्रोटेक्स्ट टू स्विम बैक टू द ट्री. उसने अपना माइंड शांत रखा और मगरमच्छ को राजी किया और एक बहाना बनाकर उसे ट्री की तरफ वापस तैरने को कहा. ही डिसाइडेड देन टू डिसकंटिन्यू हिज फ्रेंडशिप विद द क्रोकोडाइल. फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपनी फ्रेंडशिप क्रोकोडाइल के साथ डिसकंटिन्यू करेगा, ख़त्म कर देगा. द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड. मंकी डर गया
और डिस्ट्रेस्ड मतलब सैड हो गया, सैड तो होना ही था, उसके फ्रेंड ने उसको धोखा दिया। बट ही वॉज सेंसिबल एंड क्लेवर लाइक ऑल मंकीज, पर वो सभी मंकीज की तरह सेंसिबल समझदार था और चालाक था। ही केप्ट अ कूल हेड, उसने अपना माइंड शांत रखा। काल्मली ही सेड, शांति से उसने कहा, आई हैड डू एनीथिंग फॉर यू एंड योर फैमिली, मैं तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी करूँगा। यू आर माई ओनली फ्रेंड, तुम मेरे इकलौते फ्रेंड हो। आफ्टर ऑल वट इज़ अ मंकीज हर्ट कंपेयर्ड विद द लाइफ ऑफ अ क्रोकोडाइल्स वाइफ, उसने कहा अब तुम्हारी वाइफ की लाइफ के आगे एक मंकी के छोटे से हर्ट की क्या वैल्यू है। बट हाउ फुलिश कुड यू बी, पर तुम कितने मूर्ख हो। वाई डिडंट यू टेल मी बिफोर, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। आई हैव ब्रॉट माई हर्ट अलोंग, मैं अपना दिल अपने साथ ले आता, तो मुझे पहले बताते तो अपना दिल साथ में लेके आता ना। बट वेयर इज योर हर्ट, आज द क्रोकोडाइल इनोसेंटली, इनोसेंटली मतलब मासूमियत से। क्रोकोडाइल ने मासूमियत से पूछा कि तुम्हारा हर्ट कहाँ है। आई थॉट यू कैरिड इट ऑल द टाइम, मुझे लगा कि तुम हमेशा उसे अपने साथ रखते हो। ऑफ कोर्स नॉट, इट्स देयर ऑन द ट्री, नो नो, मैं साथ नहीं रखता, ये तो ट्री पे है। लेट्स स्विम बैक एट वंस एंड गेट इट, आओ वापस चलें और उसे ले आए। योर वाइफ मस्ट बी वेटिंग, तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी। रिप्लाइड द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस, अब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था मंकी में। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि क्रोकोडाइल उसकी बात मान रहा है, वापस मुड़ने को तैयार है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है और कहता है कि चलो जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारी वाइफ जो है वेट कर रही होगी। ओ डियर व्हाट अ मिस्टेक हिस्ड द क्रोकोडाइल, फिर वो क्या कहते हैं, ओहो कितनी बड़ी गलती हो गई। मगरमच्छ ने, क्रोकोडाइल ने सिसकी ली, ओहो जैसे इस तरह से बोलते हैं ना, हिस्ड। दे लाफ्ड लाउडली एज द क्रोकोडाइल टुक अ फुल टर्न टू रीच द ट्री, अब जैसे ही वो ट्री के पास पहुंचने वाले होते हैं तो एक जोर से हंसने लगते हैं। ओ ऑन द रिवर बैंक द मंकी जम्प्ड ऑन द ट्री एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, नदी के किनारे मंकी जंप करके ट्री पर चढ़ा एंड हीव्ड अ डीप साई ऑफ रिलीफ, मतलब उसने सुख की लंबी लंबी सांसें ली। अब उसकी लाइफ सेफ हो गई थी तो लंबी लंबी सांसें ले रहा था रिलीफ की। ही प्लग द फ्रूट और टू फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रोइंग देम डाउन सेड, उसने पास वाली एक टहनी से एक या दो फ्रूट तोड़े और उसे नीचे फेंकते हुए कहा, लेट योर वाइफ हैव सम फ्रूट रेदर देन माई हर्ट, अपनी वाइफ को कुछ फ्रूट दो मेरे हर्ट की बजाय। फ्रेश फ्रूट्स आर गुड फॉर माइंड एंड बॉडी, फ्रेश फ्रूट्स माइंड और बॉडी के लिए अच्छे हैं। गुड बाय फ्रेंड एंड इफ़ यू डोंट माइंड वी वॉन्ट मीट अगेन, तो फिर मंकी क्या कहता है, गुड बाय फ्रेंड, और अगर तुम माइंड ना करो तो हम दोबारा नहीं मिलेंगे। द क्रोकोडाइल सैडर एंड वाइजर, क्रोकोडाइल पहले से ज़्यादा उदास था और समझदार, उसको समझ आ गई थी कि उसने क्या किया था और उसके साथ क्या हुआ। शेड अ फ्यू टीयर्स विच वर जेन्युइन, शेड मतलब बहाए, उसने कुछ आंसू बहाए जो कि जेन्युइन थे, जेन्युइन मीन्स रियल थे। एंड टर्न्ड बैक टू गो होम, ही वॉज इन अ हरी टू टेल हिज वाइफ अ थिंग और टू, और वो घर जाने के लिए मुड़ा। वो जल्दी में था क्योंकि अपनी वाइफ से कुछ कहना चाहता था, वन या टू थिंग्स कहना चाहता था। सोचो वो क्या कहना चाह रहा होगा। उसने अपने फ्रेंड के साथ क्या किया, उसे बिट्रे, उसे धोखा दिया अपनी वाइफ की बातों में आकर, है ना। तो उसने अपने फ्रेंड को चीट किया तो अपने फ्रेंड खो दिया, और साथ ही साथ जो डिलीशियस फ्रूट्स थे वो भी अब मिलने बंद हो जाएंगे। क्लियर? होप यू ऑल क्लियर। अब देखते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन फर्स्ट, द मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। मंकी फ्रूट ट्री पे रहता था, खुश था, पर उसकी जो हैप्पीनेस थी वो कंप्लीट नहीं थी, पूरा खुश नहीं था। वो क्या मिस कर रहा था। द मंकी वॉज लिविंग हैप्पीली ऑन द फ्रूट ट्री, वो खुशी से फ्रूट ट्री पे रह रहा था, बट हिज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, पर उसकी खुशी कंप्लीट नहीं थी। यहाँ तक क्वेश्चन में से आ गया है। क्या मिस कर रहा था? ही मिस्ड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद, वो एक कंपेनियन मिस कर रहा था, मीन्स फ्रेंड को मिस कर रहा था, जिससे वो बात कर सके और अपने फ्रूट्स जिसके साथ शेयर कर सके। क्लियर? क्या मिस कर रहा था? एक फ्रेंड जिससे वो बात कर सके और जिसके साथ अपने फ्रूट्स शेयर कर सके। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक अबाउट। टू फ्रेंड्स मीन्स मंकी एंड द क्रोकोडाइल, दोनों फ्रेंड्स किसके बारे में बात किया करते थे? द टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड अबाउट बर्ड्स
एंड एनिमल्स, देखो किसके बारे में, बर्ड्स और एनिमल्स के बारे में, अबाउट द विलेजेस नियर बाय, आस पास के विलेजेस उनके बारे में, एंड द डिफिकल्टीज द विलेजर फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लैक ऑफ रेन, और डिफिकल्टीज जो विलेजर फेस करते थे, रेन कम होती थी, रेन की कमी के कारण उनकी अच्छी फसलें नहीं हो पाती थी, उनको ग्रो करने में दिक्कत आ रही थी, तो ये प्रॉब्लम्स भी वो डिस्कस करते थे। ठीक है, क्या क्या करते थे, बर्ड्स और एनिमल्स की बातें करते थे, आसपास के विलेजेस की बातें करते थे, और विलेजर्स की बातें करते थे जिनको गुड क्रॉप्स रेज करने में दिक्कत आ रही थी, रेज मीन्स ग्रो करने में, ओके, बारिश की कमी के कारण। Why was the crocodile's wife annoyed with her husband one day? क्रोकोडाइल की वाइफ क्रोकोडाइल से मतलब अपने हस्बैंड से गुस्सा क्यों हो गई एक दिन? द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज annoyed with her husband one day, यहाँ तक क्वेश्चन में से आ गई ये लाइन, बिकॉज से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज द क्रोकोडाइल हैड स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। फर्स्ट रीजन क्या है, क्रोकोडाइल पहले से ज़्यादा टाइम मंकी के साथ रुका। सेकेंड रीजन, she had been waiting and waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. वो वेट करे जा रही थी और जो उसके बच्चे थे, क्रोकोडाइल के जो बच्चे थे जो अभी अभी हुए थे, उनको वो अकेले मैनेज कर रही थी, संभाल रही थी, तो इसलिए उसको गुस्सा आ रहा था, वो इरिटेट हो रही थी। ठीक है, फर्स्ट रीजन क्या है कि क्रोकोडाइल पहले से ज़्यादा टाइम मंकी के साथ स्पेंड करता है, और सेकेंड रीजन वो वेट कर रही थी और अपने बच्चों को खुद अकेले संभाल रही थी, इसलिए वो गुस्सा हो जाती है। फोर्थ क्वेश्चन, वाई वॉज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम? क्रोकोडाइल अपने फ्रेंड को यानी कि मंकी को घर क्यों नहीं बुलाना चाहता था? द क्रोकोडाइल वॉज अनविलिंग टू इन्वाइट हिज फ्रेंड होम, यहाँ तक क्वेश्चन में से आ गई लाइन, बिकॉज से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज ही न्यू दैट हिज वाइफ वॉज प्लानिंग टू ईट द मंकी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी वाइफ प्लान कर रही है मंकी को खाने के लिए, एंड द क्रोकोडाइल वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, और क्रोकोडाइल उसे बहुत लाइक करता था, अपने फ्रेंड को मतलब बहुत लाइक करता था। ठीक है, क्या रीज़न है क्यों नहीं बुलाना चाहता था? क्योंकि उसकी वाइफ प्लान कर रही थी उसे खाने के लिए, मंकी को खाने के लिए, और वो अपने फ्रेंड को बहुत लाइक करता था। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम? क्रोकोडाइल ने मंकी से मिड स्ट्रीम में क्या कहा? इन द मिडल ऑफ द रिवर द क्रोकोडाइल टोल्ड द मंकी हिज रियल इंटेंशन फॉर इन्वाइटिंग द मंकी होम। नदी के बीच में क्रोकोडाइल ने मंकी को उसे घर बुलाने का रियल इंटेंशन बताया, असली इरादा बताया, विच वॉज टू किल हिम, जो उसे मारना था। क्या बताया? रियल इंटेंशन फॉर इन्वाइटिंग द मंकी होम, घर बुलाने का असली रीजन, असली इरादा, विच वॉज टू किल हिम, जो उसे मारना था। नेक्स्ट, हाउ डिड द मंकी सेव हिमसेल्फ? मंकी ने खुद को कैसे बचाया? द मंकी सेव्ड हिमसेल्फ बाय कीपिंग अ कूल हेड, खुद को शांत रख के, एंड टेलिंग द क्रोकोडाइल दैट ही हैड लेफ्ट हिज हर्ट ऑन द ट्री, और वो क्या कहता है कि वो अपना हर्ट ट्री पे छोड़ आया है। द फुलिश क्रोकोडाइल टुक द मंकी बैक टू द रिवर बैंक। फुलिश क्रोकोडाइल, मूर्ख मगरमच्छ, उसे रिवर बैंक पे वापस ले जाता है। एंड ऑन रीचिंग देयर, और वहाँ पहुँच के द मंकी क्लाइम्ड अप टू द सेफ्टी ऑफ द ट्री, मंकी जंप करके ट्री पे चढ़ जाता है और खुद को सेव कर लेता है। ठीक है, खुद का माइंड शांत रखता है और क्रोकोडाइल से कहता है कि वो अपना हर्ट ट्री पे छोड़ आया है। फुलिश क्रोकोडाइल उसे वापस ले जाता है रिवर बैंक पे, और वहाँ पहुँच के मंकी जंप करके ट्री पे चढ़ जाता है और खुद को सेव कर लेता है। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, What does the last sentence of the story suggest? Last sentence क्या suggest करता है? What would the crocodile tell his wife? Last sentence में क्या पढ़ा था कि वो जल्दी में था अपनी वाइफ से कुछ कहने के लिए, तो वो क्या कहना चाहता था वो देखते हैं। The last sentence of the story suggests that the crocodile had realized his mistake. क्या suggest करता है कि क्रोकोडाइल को अपनी गलती का एहसास हो गया था। The crocodile would tell his wife how foolish he had been in listening to her. वो अपनी वाइफ से क्या कहेगा कि वो कितना मूर्ख था जो उसकी अपनी वाइफ की बातों में आ गया। And thus losing a good friend and a supply of good fruits. उसने अपना एक गुड फ्रेंड खो दिया और जो उसको डिलीशियस फ्रूट्स मिल रहे थे वो भी खो दिए। क्लियर?
क्या कहेगा कि वो कितना मूर्ख था जो उसकी बातों में आ गया और उसने अपना एक गुड फ्रेंड को खो दिया, और जो डिलीशियस फ्रूट्स थे वो भी मिलने बंद हो जाएंगे। क्लियर? तो ये थे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू गाइस।